Hi student, this is Rupa from Angel Paradise English Medium School. So in this video we will see some workbook activities of chapter number 8, Role of Parliament in a Democratic Country. So in previous video I will explain introductions and some other informations of chapter number 8. So in this video we will see the workbook activities of chapter number 8. Chapter number 8, Role of Parliament in a Democratic Country. So students, in part 1 I have already explained the introductions of the chapter. So in part 2, workbook activities, we will see first MCQ. So in MCQ, don't write the options, write the direct answers only. So next question number 2, fill in the blanks BA इसमें फर्स्ट का आंसर द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी, सेकंड लोकशाही LOKSHAHI लोकशाही. थर्ड का आंसर पार्लियामेंट्री PARLIAMENTARY. फोर्थ का लोअर, फिफ्थ का अपर, सिक्स्थ का फाइव, सेवन्थ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एट का द प्रेसिडेंट, नाइन का 250, देन टेंथ का भी द प्रेसिडेंट.
11th का आंसर स्टेट्स, 12 का आंसर द वाइस प्रेसिडेंट, 13 पार्लियामेंट, 4th 14 स्पीकर, SPEAKE स्पीकर. So next question number 3, true or false. Or match the pairs correctly. So in all the matchings, you have to first write the question and after that write the direct answer of the matching. मैचिंग में ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर लिखना है. Next, question number 5. Answer the following questions in one or two sentences. First question. What does the parliament comprise of? The president, the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the vice president. Second. How many houses does the parliament of India have? Which are they? तो इसका आंसर हम बाद में देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए. 1 का. So ये रहा सेकेंड का आंसर.
So next question number 3, which is the lower house of parliament? So in textbook page number 48, in पेज नंबर 48 पार्लियामेंट के पैराग्राफ में सेकेंड पैराग्राफ, पार्लियामेंट के टॉपिक में सेकेंड पैराग्राफ, ये रहा पेज नंबर 48 पार्लियामेंट के पैराग्राफ में सेकेंड पैराग्राफ। द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस। 5.3 थर्ड का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? सो इसका आंसर भी वही पैराग्राफ में है, 48 पेज नंबर में, सेम टू सेम पैराग्राफ जो आपने 3 का लिखा है। फोर्थ का भी, राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। अपर हाउस। So question number 5, why does the parliament have complete and important powers in democracy? So it represents the people of the country. The members of parliament are representatives of the people who are elected by the people. Next, mention the main functions of parliament. सो ये रहा सिक्स्थ का आंसर, 2 पॉइंट्स लिखना है, टू कंट्रोल से लेके यहाँ तक। सो इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 और स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स है, वही लिखना है आपको। So seventh ka, what is called a constituency? For the Lok Sabha elections, the whole country is divided into various sections according to geography and population that facilitate voting. Each voting section is called a constituency. Called के बाद आपको ये वाला sentence लिखना है. Next, whom does the president appoint as prime minister? So eighth का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49
लास्ट पैराग्राफ में है। सो ये रहा लास्ट पैराग्राफ में फोर्थ लाइन, द लीडर्स ऑफ द पार्टी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक लिखना है। 8th का आंसर। Ninth, who elects the members of Rajya Sabha? सो इसका आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, 50 में लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में है। सो लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से लेके नीचे तक लिखना है। 9 का आंसर। नेक्स्ट 10 का आंसर, 10 क्वेश्चन आंसर्स, 11 का भी क्वेश्चन आंसर्स, 12 का भी क्वेश्चन आंसर्स साथ में है। 10 का वाइस प्रेसिडेंट, 11 का ऊपर हाउस, देन 12 का आएगा राज्यसभा, वो भी ऊपर हाउस ही आएगा। नेक्स्ट 13 का क्वेश्चन ये रहा, उसका हम बाद में आंसर्स देखते हैं अभी। व्हाट डज द गवर्नमेंट कम टू नो ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग सेशन, क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट? सो 13 का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51 लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, 51 में लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है 13 का आंसर। सो ये रहा लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, ड्यूरिंग से लेके और एग्जीक्यूटिव तक लिखना है। 5.13 का। Next 14, what is the responsibility of the member of parliament? To ask questions to the government about its administrative functions. Questions, questions.
सो नेक्स्ट 15 का क्वेश्चन, हाउ डज द ऑपोजिशन पार्टी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी? सो इसका आंसर टेक्स्ट बुक में है, सो पेज नंबर 51 वही पैराग्राफ जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखा है। सो वही पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन, वही पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन में, ये रहा वही पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन में, द ऑपोजिशन से लेके गवर्नमेंट तक 5.15। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डज अ बिल बिकेम अ लॉ? सो इसका आंसर भी वही पेज नंबर 51 लास्ट पैराग्राफ में है, लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन। सो ये रहा, अ बिल दैट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर इज सिग्नेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक 16 का आंसर। Last question number 7. Give reason. Rajya Sabha is a permanent house or Rajya Sabha is never dissolved completely. So here 17 का आंसर, Rajya Sabha is a permanent house. It is never dissolved completely. This is because 1/3 of the members retire every 2 years after completing their 6-year term and new members are inducted. Next question number 18. Why is the president called a part of the parliament? So in textbook, page number 51, last paragraph full. 51 में लास्ट जो पैराग्राफ है वो फुल आएगा। सो लास्ट पैराग्राफ फुल लिखना है, प्रेसिडेंट से लेके टू तक।
So next question number 6, answer the following questions briefly. What do you mean by democracy? What is its main aim? So in textbook page number 47, फ्रंट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 8, स्टार्टिंग पेज जो चैप्टर नंबर 8 का शुरू होता है. सो फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन से लेके यहाँ तक पहले लिखना है, इन डेमोक्रेसी से लेके एजेंट्स तक. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन द गवर्नमेंट से लेके अंडरटेकन तक. देन थर्ड पैराग्राफ में द से लेके प्रोसेस तक. Question number 2, how is the parliament formed in India? So in textbook page number 48, parliament पैराग्राफ आपको फुल लिखना है. So पहले ये लिखिए स्टार्टिंग दो पैराग्राफ पार्लियामेंट का. सो इंडिया से लेके अपर हाउस तक पहले पूरा लिखना है. सो नेक्स्ट वो जो डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ है वो आपको पूरा लिखना है. द इंडियन से लेके नेशन तक 6.2. So next question number 3, how is the Council of Ministers Government of India formed?
सो इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 लास्ट पैराग्राफ पूरा आपको लिखना है। सो लास्ट पैराग्राफ पूरा यहाँ पे पहले आफ्टर से लेके रूलिंग पार्टी तक लिखना है। सो वहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट पेज 50 में स्टार्टिंग पैराग्राफ में फर्स्ट 2 लाइन्स आपको लिखना है। सो यहाँ तक काउंसिल मिनिस्टर इज फॉर्म, यहाँ तक आपको 6.3 का आंसर आएगा। So students, the chapter is over. Workbook activities of lesson number 8. So write down all the workbook activities in your notebook. Thank you and take care. Bye.